Thank you, ma'am. And I'm sure by the time next year we have this program again, there would be definite and concrete evidence. Well, now is the most awaited moment of the program, जिसका हम सबको सुबह से बेसब्री से इंतजार है. Direct दिल से from Shivani Ben. Something that we have yearned and dreamt. शिवानी बहन का इंट्रोडक्शन देना तो सूरज के आगे दीप दिखाने जैसा होगा, and any combination of words cannot do justice for this. But I have a role to play, and so will Sehi. She's an ardent practitioner of Raj Yoga meditation for more than 18 years, an inspirational and motivational teacher who has been empowering thousands of people who've come her way. She is the epitome of awakening with Brahmakumaris. And she is the winner of the Women of the Decade Achievers Award by Asokam Ladies League for her excellence in empowering spiritual consciousness. Well, her serene smile and a nod is enough to transform the caterpillar into a butterfly. She will be taking us through a beautiful journey of creating the personality of your child. Well, the time is now. ओम शांति। आज सुबह से बहुत गहरी बातें सुनी और प्रैक्टिकल प्रूफ भी देखा, है ना? तो 2 मिनट पहले साइलेंस में बैठते हैं। A little visualization. Just close your eyes if you want. Look at your baby. बेबी जो अभी गर्भ में है वो नहीं, लेकिन बेबी एज a human being 20 years later. Look at that personality. एक 20 साल का व्यक्ति. How would you want that person to be? अगर उसके सामने कभी कोई प्रॉब्लम आए, what would be that person's way of handling it? अगर उसके सामने कभी कोई गलती करे तो उसका व्यवहार उनके साथ कैसा होगा? Look at that person. कैसा व्यक्तित्व चाहिए? How should that child be with everyone around them? उसके रिश्ते कैसे होंगे? वो जिस भी प्रोफेशन में होगा, वहाँ हर एक के साथ उसका व्यवहार कैसा होगा? Create a very, very clear picture. How do you want that person to be? ओम शांति। कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? एनी मदर, क्या दिखाई दिया? He's leading a very noble life, हाँ. helping people, and in his work also he's very nice, positive. So everything helping nature, helping nature, positive. positive nature, or anyone else? Very calm person. You just enter. Think. Emotionally very strong.
What would be the meaning of my child should be emotionally very strong? Stable, okay? Stable, helping, caring, positive, और कुछ? Fathers? Courageous. Father? हाँ? Courageous. Courageous, कैसे वाला courageous? The way to face, the challenges around. Yeah, but the way to face कैसे वाला चाहिए? क्योंकि एक courageous तो वो भी हो सकता है ना कि we have to be very clear, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कोई अंदर वैसा बन रहा है. रैंडम थिंकिंग नहीं चल सकती कि कुछ भी बैठ के सोच लिया. हम जो सोच रहे हैं किसी ने ऑलरेडी वैसा बनना शुरू कर दिया है. सो बी वेरी केयरफुल कि करेजियस तो कैसा करेजियस चाहिए. एनीथिंग एल्स? हाँ जी. स्पिरिचुअल मतलब क्या? क्या चाहिए? व्यक्तित्व देखना है कैसा चाहिए. पर्सनालिटी. ओके, क्षमा करने की क्वालिटी चाहिए. एनीथिंग एल्स? हैप्पी हैप्पी चाहिए. कभी कभी, हमेशा, मोस्टली. कौन से पेरेंट को मोस्टली हैप्पी चाहिए? हाँ, मोस्टली बोल दिया तो फिर कोई सुन रहा है. मतलब आपने ऑलरेडी उसको अभी क्या कहा? 80% हैप्पी, 20% दुखी. यू वांट ऐसा बच्चा? नहीं. कैसा वाला चाहिए? 100% हैप्पी. गुड. क्लियर कम्युनिकेशन. और कैसा चाहिए? हाँ जी. आप नहीं, सिर्फ मम्मी पापा को अलाउड है बताना. ओनली मम्मी पापा आर अलाउड टू से कैसा वाला बेबी चाहिए. ऑनेस्टी चाहिए, हेल्दी चाहिए. और कैसा चाहिए? Smiling, loving and cheerful. हाँ जी. Smiling, loving and cheerful. सिंपल चाहिए. स्माइलिंग चाहिए, लविंग चाहिए और चीयरफुल चाहिए. कभी कभी या हमेशा? हमेशा. गुड. एनीथिंग एल्स लेफ्ट? रिस्पेक्टफुल. किसकी रिस्पेक्ट करे? सबकी करे. ओके. विक्टोरियस ओवर. क्लियर कम्युनिकेशन. हाँ हाँ. I can be victorious over my job by doing a lot of things on the way also. So be very clear. That's very important. जो सोचेंगे कोई बन रहा है. अगर आपने उसको कहा तुम्हें सिर्फ फर्स्ट आना है, विक्टोरियस मतलब फर्स्ट आना है, ये नहीं बताया कैसे फर्स्ट आना है, तो वो कैसे भी करके फर्स्ट आएगा क्योंकि उसने सीखा था कि फर्स्ट आना है. अभिमन्यु का क्या हुआ? उसने सिर्फ सीखा घुसना कैसे, बाहर जाना नहीं सीखा तो नहीं निकल पाया ना. तो पर हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा. अगर हमने उसको सिर्फ ये मैसेज दिया कि आप जो करोगे यू हैव टू एक्सेल, ही और शी विल एक्सेल बट एट एनी कॉस्ट, विच अ लॉट ऑफ पीपल टुडे आर डूइंग, एक्सेलिंग बट एट द कॉस्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स. तो वो भी बताना उसको कैसे वाला होना है. और कुछ रह गया? सिर्फ मम्मी पापा ने सुनाना है. एनीथिंग एल्स लेफ्ट? कॉन्फिडेंट. अच्छा, अब आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हमें एक बात समझ में आ गई कि जैसा हमें चाहिए क्या हम बना सकते हैं वैसा? बना सकते हैं. क्या करना है हमें वैसा करने के लिए? आपने तो कैच ही नहीं किया मेन मैसेज. फिर सुबह से हमें हैप्पी, चीयरफुल, लविंग, फॉरगिविंग, पॉजिटिव, स्टेबल ऐसा व्यक्ति चाहिए. तो हमें क्या करना है उसके लिए? वी विल हैव टू बी हैप्पी, चीयरफुल, स्माइलिंग, लविंग, रिस्पेक्टफुल, केयरिंग. कभी कभी हो गया मेरा 1 घंटे का काम 1 मिनट में फिनिश्ड. इट्स एज सिंपल एज दैट. आज अगर हम इसको एक मंत्र की तरह पकड़ लें, जो हम सोच रहे हैं, नॉर्मल भी, डोंट थिंक ओनली ऑफ एक्सपेक्टिंग मदर्स, जस्ट नॉर्मल कोई भी देखे, जो हम सोचते हैं उसका असर किस पर पड़ता है? एवरी थॉट वी क्रिएट हियर, है ना. 1 2 आई कैन जस्ट सिट एंड रैंडम क्रिएट थॉट्स. ये ऐसे क्यों बैठी है, इसने ऐसे क्यों पहना, ये ऐसे क्यों, ये लेट क्यों आए. एक थॉट है. एवरी थॉट आई क्रिएट, उसका असर किस पर पड़ता है? वो बाद में है.
फर्स्ट थॉट दैट आई क्रिएट, उसका असर मेरे मन की स्थिति पर पड़ेगा. अगर मैंने एक अच्छी थॉट क्रिएट की, आई फील नाइस. अगर मैंने एक, तो आई विल फील लो. सबसे पहले मेरे मन की स्थिति पर असर पड़ेगा. नेक्स्ट किस पर असर पड़ेगा? जो हम थॉट क्रिएट करेंगे, सबसे पहले यहाँ असर पड़ेगा, विच मीन्स द वे आई थिंक, फील, स्पीक, बिहेव, माई पर्सनैलिटी. सेकेंड, हमने अभी देखा, जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वो हमारे शरीर पर असर पड़ेगा. सारे चक्र देखे, पहले बंद फिर खुले, इतना इजीली एक थॉट से सिर्फ. फिर जो हम थॉट क्रिएट करेंगे उसका किस पर असर पड़ेगा? लेट्स अलाउ न्यू पीपल टू थिंक. फिर उसके बाद उसका असर किस पर पड़ेगा? फर्स्ट माइंड पर किया, फिर शरीर पर हुआ, उसके बाद किस पर असर पड़ेगा? जिनके लिए वो थॉट क्रिएट की गई है. राइट? So if you're thinking for someone, you will not be able to stop that message from reaching that person. पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट हुआ, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने किया. एक व्यक्ति मुंबई में बैठे, एक व्यक्ति पेरिस में. सो द डिस्टेंस वाज 4000 माइल्स. दोनों को कुछ लिखना या बोलना नहीं था, और दोनों के साथ ईईजी मशीन लगाई गई टू मॉनिटर अंदर मन और ब्रेन में क्या चल रहा है. जो मुंबई में बैठे, उसने एक थॉट क्रिएट की फॉर द पर्सन हु वाज सिटिंग इन पेरिस, एंड कुछ ही क्षणों में वहाँ के ईईजी मशीन पर वो ही ब्रेन पैटर्न दिखाई देने लग गया. पूरा लंबा एक्सपेरिमेंट है, और उसके एंड में उन्होंने कहा, टेलीपैथी जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, कि जो हम सोचेंगे इट विल गेट कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन ब्रेन टू अनदर ब्रेन. Actually, it's not from a brain to another brain, it's from a mind to another mind. अब आप सोचो, अगर 4000 miles across वो मैसेज जा सकता है, कितना डिस्टेंस है इधर से इधर? कितना डिस्टेंस है? 4000 miles. हम में से किस किसने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया? इसका मतलब जो हम सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंचता है. The being, when it is not attached to the new body, and which means the being, that energy जो एक नया शरीर लेती है, उसका नए शरीर से अभी कोई अटैचमेंट नहीं है, उसका नए परिवार से भी अभी कोई अटैचमेंट नहीं है, वो किसी को नहीं जानते. जब आत्मा डिटैच्ड होती है, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है. जैसे हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, तो कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे मन में होता है वो पहले ही बता देते हैं. किया किसी ने एक्सपीरियंस? हमने कहा ये मेरे माइंड में था, उन्होंने पहले ही बताया. कैसे बताया? क्योंकि उनका माइंड साइलेंट है, तो वो सामने वाले के माइंड के वाइब्रेशन को कैच कर सकते हैं. जो आपके अंदर बैठा है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी और सोल कॉन्शियसनेस पर है. अपने नए शरीर के साथ उसका अटैचमेंट कुछ भी नहीं हुआ, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है, बहुत स्ट्रांग नहीं है. आप एक भी थॉट ऐसी नहीं क्रिएट कर सकते जो उसको पता नहीं चलने वाले. अब कितना ध्यान से सोचना पड़ेगा. टेंशन नहीं लेनी, अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेनी इस बात की. जब बेबी हाथ में आएगा, हम उससे कैसी कैसी बातें करेंगे? सारी बातें बड़ी प्यारी प्यारी करेंगे, क्योंकि वो सामने दिख रहा है ना. तो हमने उसके सामने कोई गलत बात नहीं करनी. आपस में हस्बैंड वाइफ भी नहीं लड़ेंगे, वो सुन रहा है. लेकिन अभी कहाँ है वो? अभी थोड़ी दिख रहा है. अभी हम लड़ भी सकते हैं, हम झगड़ भी सकते हैं, हम रूठ भी सकते हैं, हम रो भी सकते हैं, हम नाराज भी हो सकते हैं. वो सुन रहा है. अब अगर हमें स्माइलिंग, चीयरफुल, हैप्पी, फॉरगिविंग, स्टेबल, पावरफुल बेबी चाहिए, तो हमारी हर थॉट कैसे होनी चाहिए? एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द मदर, क्योंकि एक है डिस्टेंस यहाँ से, या एक है डिस्टेंस यहाँ से, या साथ में ही बैठे ना,
तो ऐसे नहीं कि घर जाके उनको बोलने लग गए अपना ध्यान रखो, सही सोचना है, अपना भी ध्यान रखना है, हमने भी सही सोचना है ना, दोनों की। एक्चुअली जो घर में सारे हैं सबकी, क्योंकि हम सब जो घर में रहते हैं, हमारी सोच हमारे घर का परफ्यूम बना देती है, वाइब्रेशन बनाती है, एंड उसको वो आत्मा अंदर भरती जा रही है। जो हम कहते हैं ना, ये संस्कार इसके नाना जैसा है, ये संस्कार दादा जैसा है, ये संस्कार मामी जैसा है, वो कैसे आया? वो कैसे आया? उसने वो वाइब्रेशंस कैच किए उस 9 महीने के अंदर। किसी का कुछ लिया, किसी का कुछ लिया, किसी का कुछ लिया, किसी का कुछ लिया, बन गया। आज मिनिस्टर साहब ने एक लाइन कही, 1 रुपया हम अभी अगर खर्च करें तो 1000 रुपये हम अपनी हेल्थ पर आगे खर्च करने से बच जाएंगे। सिमिलर चीज़ को अगर हम इमोशनल लेवल पर लें कि कुछ चीज़ें 5 मिनट बोलते तो भी ठीक था, 5 घंटे बोल देते तो भी ठीक था, 5 मिनट 5 महीने कैसे कोई गुस्सा नहीं कर सकता? एंड शी लिटरली रिडिक्यूल्ड द होल थिंग एंड शी सेड छोड़ दो। ऐसे बस मेरा मन किया आपको कहने का कि आप 5 महीने अगर ध्यान रख लोगे, गुस्सा नहीं करना, तो इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसने उसको इग्नोर कर दिया बात को। थोड़ी देर के बाद वो अपने 4 साल के बेटे को लेकर आती है, फर्स्ट चाइल्ड, एंड शी कम्स एंड सेज, सिस्टर मेरे बेटे को ना बहुत गुस्सा आता है, क्या करूँ उसका? एंड शी डिड नॉट रियलाइज द कनेक्शन बिटवीन द 2 थिंग्स। आई सेड वो 9 महीने में मेहनत कर ली होती ना थोड़ी सी, तो अब ये जीवन भर की मेहनत से क्या हो जाते, बच जाते। लेकिन हम चाहते हैं वो बदल जाएं। उनको वैसा बनाया कैसे? पहले क्यों आपको सब कह रहे हैं अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ? क्योंकि जो अभी खाएंगे वो बच्चे की फाउंडेशन में, हेल्थ में सेट हो जाएगा। अच्छा सोचो, जो अभी सोचेंगे उसकी पर्सनालिटी में सेट हो जाएगा। एक सीडी पे गाना रिकॉर्ड हो जाता है। अभी अगर हम गुस्सा करेंगे, परेशान भी रहेंगे, चिंता भी करेंगे, वो सारा गाना रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको वो गाने सामने प्ले होते सुनाई देंगे, और फिर अपने ही रिकॉर्ड किए हुए गाने जब सुनने पड़ेंगे, मेरा बेबी ऐसा क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। रिकॉर्ड किसने किया? गाना रिकॉर्ड। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल बट येट द मोस्ट पावरफुल। वी हैव अ चॉइस कौन सा गाना रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसके बाद जीवन भर उसको सुनते समय फिर देन वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गाना किसने रिकॉर्ड किया? जैसे आज डॉक्टर नितिका ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, कि वाइल शी वाज कैरिंग हर फर्स्ट सन, तो क्योंकि उनकी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, तो फुल 9 months वेंट थ्रू एंजाइटी एंड फियर ऑफ लूजिंग अ पेरेंट। अब हम कहेंगे ये तो नेचुरल है ना, मदर क्रिटिकल है, लेकिन फियर ऑफ लूजिंग अ पेरेंट यहाँ चल रहा था। एंड दूसरी चीज जो यहाँ चल रही थी वो था केयर ऑफ द पेरेंट। तो वो जो अंदर बैठा था उसने दोनों चीजें सीख ली। आज वो यही है, आप सबसे मिला है, ब्यूटीफुल सोल। लेकिन अब उसको अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये जो मेरे पास संस्कार है ये कहाँ से आया। अब वो वर्क करके उस पर चेंज करेंगे, लेकिन उसके पास वो दोनों संस्कार बहुत ब्यूटीफुल हैं। केयरिंग, उसके जैसा केयरिंग बच्चा नहीं देखा होगा। कुछ भी हो जाए, ही इज द फर्स्ट वन टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी, क्योंकि उसके 9 महीने के अंदर सिर्फ केयरिंग ही चल रहा था। कितना इजी है रिकॉर्ड करना, लेकिन साथ साथ थोड़ा फियर भी रिकॉर्ड हो गया, तो उसको थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ेगा। जब हमें नॉलेज नहीं होती तो कुछ भी रिकॉर्ड हो जाता है, बिकॉज वी डिडंट नो कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब हमें अवेयरनेस है, थोड़ा सा अटेंशन है सिर्फ। आप में से किसी को गुस्सा तो नहीं आता? आप में से किसी को गुस्सा तो नहीं आता? आज छोड़ के जाएंगे कितने महीनों के लिए? Till your child is giving you an opportunity to even change your sanskars.
क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी तरीका थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस कर लो तो उतने दिन में तो वो हमारा नया संस्कार बन जाएगा ना। गुस्सा करते रहे करते रहे करते रहे, गुस्सा करने का संस्कार बन गया। जहाँ हम इतनी परहेज कर रहे हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, यहाँ नहीं जाना, सिगरेट स्मोक के पास नहीं जाना, पोल्यूशन में नहीं जाना, ये सब परहेज कर रहे हैं, तो ये भी परहेज करने हैं साथ में, क्यों नहीं कर सकते? किस किस के पास हिम्मत है कि अगले जितने भी महीने बचे, एंड एक्चुअली इट्स नॉट ओनली दैट मच, इट्स एटलीस्ट टिल द चाइल्ड इज 2-3 years old, क्योंकि वो ब्लॉटिंग पेपर की उस टाइम चूसने की शक्ति बहुत हाईएस्ट है, जब तक उसकी अपनी इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होना शुरू होती। कौन रेडी है होमवर्क करने के लिए? ये दो तो हैं। एंड दोनों को हाथ उठाना है, उधर नहीं देखना कि हाँ कर लेना होमवर्क, हमारे बेबी का सवाल है ना? दोनों के, माता पिता दोनों के संस्कार आत्मा को मिलने वाले हैं। जस्ट विजुअलाइज कि आपके अंदर अभी जो आत्मा बैठी है वो कहाँ से आई है, कहाँ से आई है और क्या देख कर आई है? Somebody leaves a body somewhere for someone to be born somewhere. आपके अंदर जो बैठा है वो कुछ महीने पहले एक बहुत अच्छे परिवार को छोड़कर आया है और वो लोग अभी भी उसके लिए रो रहे हैं वहां पे। वो अपना परिवार छोड़ के आया, अपना शरीर छोड़कर आया, अपनी जो कुछ उसने अक्वायर किया था छोड़कर आया है। Now see, here is a soul inside you, जिसकी पूरी फैमिली क्या कर रही है उधर बैठ के? रो रही है, and they're really crying. वो ऐसे ऐसे भी मैसेजेस भेज रहे होते हैं, तुम क्यों चले गए, तुम्हारे बिना हमारा कैसा होगा, वापस आ जाओ, ऐसा भी बोलते हैं लोग। आजकल तो लोग वापस कनेक्ट करने की भी कोशिश करते रहते हैं। Now, अंदर बैठे आपके भी थॉट्स वो कैच कर रहा है, उनके भी कैच करता है। And that's why sometimes you will experience your baby going through a little. We kind of relate all that to physical things. They're not physical. When someone's disturbed inside, now that soul is in a little pain. हमारी responsibility क्या बनती है? हमारी responsibility क्या बनती है? We cannot give even इतना दर्द और हमें इतनी खुशी देनी है, इतनी खुशी देनी है, इतनी शक्ति देनी है कि वो अपने वो वाले दर्द को भी क्या करे, भूल जाए। लेकिन हम अगर अपनी रोज के जीवन में इधर कॉन्फ्लिक्ट, उधर टेंशन, इधर स्ट्रेस, इसके साथ थोड़ा झगड़ा, उसके साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट, ऑलरेडी इन पेन, एग्जिस्टिंग एडिशनल पेन, इफ वी वांट आवर चाइल्ड टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, फिर हम आज कह रहे हैं कि आजकल के बच्चे ना जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, उनकी टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति कम है। क्यों है आज के बच्चों में ऐसे? क्योंकि आज के पेरेंट्स हम ऐसे हैं, तो हमारे पास वो चॉइस है। सो व्हेन यू टॉक टू योर बेबी, उसको वो दर्द भुलाने की भी हेल्प करो, उसको ये बताओ कि वो कहाँ आ रहा है, बिकॉज वेरी इनसिक्योर इनसाइड, उसको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आ गया, कोई अपने बच्चे को छोड़ के आया, कोई अपनी वाइफ को छोड़ के आया, कोई अपने पेरेंट्स को छोड़ के आया है, एंड उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है मैं किन लोगों के बीच जा रहा हूँ। तो उसको सिक्योर फील कराना, कंफर्टेबल फील कराना और उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी हर थॉट कितनी पावरफुल और प्योर होनी चाहिए। तो गुस्सा करने का तो गुस्सा तो बहुत टर्बुलेंट एनर्जी हो गई, हमें तो मन में भी उदास नहीं होना है। क्यों पहले कहते थे अच्छी फोटोज रखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, ताकि अंदर जो चले वो अच्छा चले। आज तो मूवी भी देखते हैं तो कैसी देखते हैं? आप में से कोई टीवी पे न्यूज़ देखता है? Banned till your child is delivered. Banned, absolutely banned. There is nothing happening on that which that soul should be listening to or watching, because अंदर बैठे उसको लगेगा दुनिया का ये हाल है जहाँ मैंने आना है। हर चीज जो अंदर मिले वो कैसी वाली होनी चाहिए?
वायलेंट, टर्बुलेंट, नेगेटिव, फियर ये नहीं अंदर भरना है. उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है इस टाइम. तो मूवी भी देखें तो कैसी देखें, गाने भी सुने तो कैसे सुने, सीरियल भी देखें तो वो ना देखें जिसमें सब लड़ रहे हैं आपस में. बंद. नहीं तो वो क्या सीखेगा. कौन कौन सीरियल देखता है लड़ाई वाले सारे. अगर आप सीरियल देखेंगे जिसमें हर एक पे शक कर रहा है, हर एक का इसका, उसके साथ रिश्ता, उसका उसके साथ रिश्ता, वो सीख रहा है अंदर. This is how much care we have to take. These 9 months for you are divine 9 months. तो हम कुछ अंदर नहीं जाने देंगे जो उसके लिए अच्छा नहीं है. जब बेबी पैदा होता है क्या उसको सिनेमा थिएटर लेकर जाते हैं. नो. बेस्ट मूवी लगी है शाहरुख खान की, लेके जाएंगे अपने बेबी को मूवी में. नहीं लेके जाते. अभी आजकल लेके जाते हैं. No. सी जब वो हाथ में आ जाता है तो नहीं लेके जाते. यहाँ है तो लेके जा सकते हैं. यहाँ भी वही है जो हाथ में होने वाला है कुछ महीने के बाद ना. जब हाथ में आने के बाद नहीं लेके जा सकते तो अभी भी नहीं लेके जाना चाहिए. क्या वाइब्रेशन होता है एक मूवी थिएटर का. सिर्फ फिजिकल नॉइज वो नहीं, वाइब्रेशन कैसा होता है वहां पर, कहाँ जाना चाहिए. सो वी हैव टू टेक केयर कि हमारे ये सेंस ऑर्गन से क्या अंदर जा रहा है. क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं. एक भी चीज वैसी नहीं होनी चाहिए जो आगे जाके उस बच्चे को देखेंगे और हम कहेंगे ये ऐसा क्यों. बिकॉज पेरेंट्स अपने बच्चों को देख देख के क्वेश्चन मार्क उठाते रहते हैं. ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों. सो गुस्सा करना, चिंता करना. एक्चुअली हमारे डॉक्टर्स को लिख देना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पे. एंगर नॉट अलाउड, हर्ट नॉट अलाउड. रोने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता. एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इन द हाउस हैज टू बी अ लिटिल मोर एडजस्टिंग एट दिस टाइम. अपने ईगो को छोड़ देना चाहिए. एक दूसरे से पैक्ट बनाएंगे, हम लड़ेंगे इस पे 1 साल बाद. पेंडिंग रखो इसको लिखकर. आज नहीं लड़ेंगे इसके ऊपर, आज नहीं आर्ग्यू करेंगे, आज नहीं इस पर हम करेंगे. मदर इन लॉ के साथ भी सब फाइल में लिख लो पेंडिंग. 1 साल बाद माता जी इस पे बात करेंगे हम, लेकिन मैं आज नहीं लड़ूंगी आपसे इस बात के ऊपर, क्योंकि कोई सुन रहा है ना अंदर. आज तो हम उसके लिए ही लड़ रहे होते हैं. माता जी कहेंगे कुछ खाओ, हम कहेंगे कुछ खाओ. उस बातों पे भी लड़ते रहेंगे जो हमें बड़े बताते हैं. और कई बार हमें इंटरनेट जो आज बताता है वो थोड़ा डिफरेंट है. और आजकल उस पे ही बहुत लड़ाई होती है. जो हमें बड़े बताते हैं ना वो हमारी इंडियन कल्चर सभ्यता से है. जो इंटरनेट पर हम सीखते हैं ना वो कहाँ से आता है, वो कहाँ से आ रहा है. वो कुछ ऐसे घरों और देशों से आ रहा है जहाँ इकट्ठे रहने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है. इसलिए ध्यान से कि मुझे कैसा परिवार आगे चाहिए, मुझे कैसी बॉन्डिंग चाहिए, मुझे कैसे रिश्ते चाहिए, वो बिल्कुल ध्यान से करना है. तो एक एक होमवर्क लेते हैं. गुस्सा करना आज से बंद. वो तो हमें पता ही नहीं है. हॉल से बाहर जाने के बाद एक भी करने लगेगा ना तो दूसरे ने उसको इमीडिएटली क्या करना है. 110% आपका बेबी एकदम पीसफुल वाला पैदा होगा, जिसको गुस्सा आएगा ही नहीं. और जो पीसफुल होता है वो पावरफुल होता है. जो पीसफुल होता है वो पावरफुल होता है. जो गुस्सा करता है वो गुस्सा करते करते अपनी बहुत सारी शक्ति को क्या करता है, नष्ट करता है. यहाँ जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी उसका असर पहले हमारे शरीर पर पड़ेगा, फिर उसके मन पर पड़ेगा, फिर उसके मन का असर उसके शरीर पर भी पड़ेगा. तो इस समय अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी बेबी हो तो हेल्दी बेबी के लिए इस टाइम 2 मन का असर उस पर पड़ रहा है ना. 2 मन का असर इस टाइम उसके ऊपर पड़ रहा है. तो अगर यहाँ गुस्सा हुआ
वहां भी दर्द हुआ, फिर 2 दर्द वाले पेन से वो हेल्दी बेबी कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो जस्ट बाय सेइंग कि हेल्दी बेबी चाहिए, इट विल नॉट हैपन, बिकॉज एवरी थॉट वी क्रिएट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑन द बॉडी. सो इफ वी वांट अ हेल्दी बेबी, वी नीड टू हैव अ हेल्दी माइंड. भोजन खाएंगे तो कैसा भोजन खाएंगे? आज हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो हमें ये तो बता देते हैं कि कितना प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है. अब उस खाने के थ्रू हम प्यार भी भर सकते हैं, शांति भी भर सकते हैं, शक्ति भी भर सकते हैं. जैसा अन्न वैसा मन. अग्रीड? अग्रीड? कौन कौन अग्री करता है? क्योंकि थोड़ी पुरानी बात है ना. जैसा अन्न वैसा मन. आज सुबह सुबह प्रैक्टिकली देख लिया. जैसा पानी, वो भी कितनी देर में? 2 मिनट्स. 2 मिनट्स के अंदर चक्रा भी बैलेंस हो गए. और वो ऑरा कहाँ से कहाँ है? वो मदर. डिड यू सी द डिफरेंस प्रैक्टिकली? यस. इन 2 मिनट्स ऑफ चार्जिंग द वाटर. अब आप देखो, हम रैंडम कहीं भी पानी पी लेते हैं, हम रैंडम कहीं भी खाना खा लेते हैं. हम सोचते हैं खाना ही तो खाना है ना. जैसे उन्होंने थॉट क्रिएट की, पानी को देखा, चार्ज किया, तो उन्होंने क्या थॉट भरी? पानी के अंदर पॉजिटिव थॉट्स भरी. जिसने उस पानी को पिया, उसके माइंड को चेंज किया और उसके बॉडी के चक्रा को भी चेंज कर दिया, ऑरा को भी चेंज किया 2 मिनट के अंदर. हम कितने यहाँ जगह पर पानी पी रहे हैं, कितनी जगहों पे हम खाना खा रहे हैं. जिसने जो खाना हमारे लिए बनाया होगा, उनकी मन की स्थिति का असर उस खाने में जाएगा. वो खाना पानी हम लेंगे और उसका असर हमारे मन पर और हमारे शरीर पर आ जाएगा. कितने ध्यान से खाना खाना चाहिए. ऐसा नहीं कर सकते कहीं भी खड़े हुए पानी पूरी खा ली, कहीं भी खड़े हुए चाट खा ली. वन इज द हाइजीनिक पार्ट, वन इज द इमोशनल एनर्जी पार्ट. कैसे खा सकते हैं? अगर हमें हैप्पी मन चाहिए, पीसफुल पावरफुल मन चाहिए, तो हमारा अन्न भी कैसा चाहिए? पीसफुल पावरफुल चाहिए. अगर हमने तामसिक अन्न खाया, आप में से पेट एनिमल्स किसके पास हैं घर पे? डॉग, कैट है. डू दे हैव थॉट्स एंड फीलिंग्स? डू दे हैव थॉट्स एंड फीलिंग्स? दे हैव थॉट्स एंड फीलिंग्स. अब एक जानवर को यहाँ बांधा जाए और उसको पता है कि उसको 10-15 दिन बाद मारा जाने वाला है, कोई थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट होंगी उसके अंदर? कैसी वाली होंगी? फियर और एंगर और एंजाइटी और हेट्रेड. अब 15-20 दिन, महीना, जितना टाइम भी वो स्लॉटर हाउस में रहा, उसने ये इमोशंस क्रिएट की, हार्मोन सिक्रीट हो गए बॉडी में, और फिर हमने कहा प्रोटीन्स. फिर हमने कहा प्रोटीन्स. प्रोटीन्स वो हैं, लेकिन प्रोटीन्स तो और चीज़ों में भी है ना. प्रोटीन्स के नाम पर ऐसी चीज़ क्यों खाई जाए जिसमें एंगर, हेट्रेड, एंजाइटी, पेन भी हो, और वो भी ऐसे टाइम पर जब मन और शरीर बन रहा है, डेवलप हो रहा है. उस टाइम पर जब हमारे घर में डेथ होती है, तो जितना समय डेड बॉडी घर में होती है, 1 दिन 1.5 दिन, उतने टाइम पे घर में खाना नहीं बनता ना. घर में खाना नहीं बनता ना. क्यों नहीं बनता? नेगेटिव एनर्जी है. तो कभी सोचा कि जब हमारी फैमिली मेंबर, हमारे अपने, उनका डेड बॉडी घर में है तो खाना नहीं बनता, और किसी और की डेड बॉडी का खाना बनता है? और हम किसको खिला रहे हैं? जिसकी बॉडी अभी बन रही है. फाउंडेशन में क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? कैसी एनर्जी डालेंगे? थिंक अबाउट इट. कैसा शरीर और कैसा मन चाहिए? क्या हम कुछ महीनों के लिए कुछ चीज़ों को त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं? है हिम्मत? कर सकते हैं? तो हमारा अन्न कैसा हो? सात्विक. अब सात्विक डजंट मीन ओनली वेजिटेरियन, लेकिन सात्विक मतलब जो बहुत प्यार से बनाया हुआ होगा. आज आपने देखा उन्होंने पानी में जो इंटेंशन दी, इंटेंशन वर्कड.
एवरीथिंग दैट वी ईट इज ऑल्सो 80% तो वाटर ही होता है उसमें, चाहे वो सब्जी है, फ्रूट है, दाल है, सब कुछ तो पानी है। तो क्यों ना हम खाना बनाते समय, आप में से वैसे कौन कौन अपने आप खाना बनाता है? Good. खाना बनाते समय यू हैव द पावर कि आप खाना बनाते समय जो जो सोचते जाओगे, अब बताओ खाने में क्या इंटेंशन डालनी है, बोलो, बोलते जाओ क्या क्या डालना है, एक एक कड़छी घुमाओ और डालते जाओ क्या क्या डालना है। ऐसे नहीं बोलना लव पीस हेल्दी, ऐसे वाला नहीं बोलना, प्रॉपर बोलना है कि ये खाना जब मैं खाऊंगी तो क्या होना चाहिए। खाना पता ही नहीं चलेगा, आधे घंटे में इतना अच्छा खाना बन जाएगा। वो सारी इंटेंशन उसके अंदर, उसमें ये नहीं डालना कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहिए, ऐसी वाली इंटेंशन है ना। क्योंकि जनरली हमारा इंटेंशन किस पे होता है ना, डॉक्टर बनना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर पेरेंट्स इस 9 months को किस लिए यूज करते हैं, पूरी उसकी डेस्टिनी लिख रहे होते हैं। आई हैव सीन पेरेंट्स उसे, फिर वो बाहर जाएगा, पढ़ेगा, फिर वापस आएगा, फिर ये करेगा, वो करेगा, मेरा हॉस्पिटल संभालेगा। बच्चा एक और चीज भी अपने साथ लेकर आता है, अपने किए हुए संस्कार और कार्मिक अकाउंट। हम उसके संस्कारों पे प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन उसकी डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना। इट विल गेट कॉन्फ्लिक्टिंग। आवर रोल इज टू बी अ फैसिलिटेटर, नॉट टू बी अ कंट्रोलर। तो जब हम सोचें तो हमारी सोच इस पर होनी चाहिए कि उसकी वैल्यूज कैसी हो, पर्सनालिटी कैसी हो, वर्च्यू कैसी हो, ना कि उसका प्रोफेशन कौन सा हो। नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट लेकर पैदा होता है, क्योंकि उसको कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज मिलते हैं। तो जब भी हम भोजन बनाएं, हम परमात्मा की याद में भोजन बनाएं। उस समय अगर आप किचन में कोई भजन चलाएं, कोई चैंटिंग करता है चैंटिंग करें, कोई प्रेयर करता है प्रेयर करें, कोई मेडिटेशन करता है कुछ भी करें उस टाइम। क्योंकि इवन अगर अपने हाथ से बना रहे हैं, लेकिन कोई चिंता के साथ भी तो बना सकता है ना। आज आप ऑफिस थे, सारा दिन कुछ हुआ एंड दैट्स ऑन योर माइंड, तो वो चिंता करते करते आप खाना बनाएंगे, उसके अंदर असर हो जाएगा। हमारे पास सेंटर पर एक भाई आए, कहते 1 हफ्ते से ना मुझे सपने आ रहे हैं कि मैं घर ढूंढ रहा हूँ झोपड़पट्टी एरिया, स्लम एरिया में जाकर। एंड ही वॉज अ वेरी वेरी रिच बिजनेसमैन। ही सेड, इज दिस माई फ्यूचर और इज दिस माई पास्ट? ऐसे वी डोंट नो। कहते रोज सपना आता है, थोड़ा मैं बहुत डिस्टर्ब होकर उठ जाता हूँ। 8-10 दिन बाद द लेडी हु कुक्स फॉर हिम, उसने आकर कहा मुझे 25,000 रुपये चाहिए, मुझे कमरा किराए पे मिल रहा है। तो उन्होंने उसको दे दिया। उनके वो सपने आने बंद हो गए। और फिर समझ में आया, कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी 10 दिन से, मेरे पास घर ही नहीं था रहने के लिए। सिंपलेस्ट है। तो इसलिए अपने हाथ से बना रहे हैं, लेकिन क्या सोचते हुए बना रहे हैं, बहुत ध्यान से। दैट इज नॉट द टाइम फॉर एनी वेस्ट नेगेटिव इधर उधर की थॉट्स। आज ये हुआ, आज ऑफिस में ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, नहीं। दैट इज द टाइम फॉर पूजा पाठ। लिटरली अपनी पूजा पाठ उस टाइम पर करनी चाहिए जब खाना बना रहे हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ वही वाली वाइब्रेशंस खाने में जाएंगी। आज हमने देखा 2 मिनट उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, पानी चार्ज हो गया। अगर हम ये 2 मिनट सुबह घर से करके निकलें, तो हमारे सामने जो भी ग्लास पानी का आएगा, हमें क्या करना है, सिर्फ 30 सेकेंड पॉज करना है, उसको वाइब्रेशन देनी है, पी लेना है। दैट पानी इज सेफ फॉर अस, दैट खाना इज सेफ फॉर अस। लेकिन कुछ भी रैंडमली अगर डालते गए, it is affecting not only me, it's affecting that body and that mind which is getting created. So we just can't only say healthy healthy चाहिए। तो अब रिवाइज करो क्या क्या करना है, और आज से बहुत सारी चीजें करनी है। आपस में किसी का कॉन्फ्लिक्ट चलता है कभी कभी? डेली? आज यहाँ से पैक्ट साइन करके जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आ सकते प्रोग्राम में। किस किस का छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट चलता है? चलो हाथ उठाओ, उठा लो। अच्छा,
क्यों हमारा आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है? क्या बात आती है जनरली? क्या बातें होती हैं जनरली? किस पर हमें गुस्सा आ जाता है? क्यों इरिटेशन होती है? क्या बात आती है? हाँ जी, different thoughts, different opinion, expectations from the other person to be the way I want them to be. Yes, what else? The world would so be beautiful if people could just be the way I want them to be. एक ऑप्शन ये भी है कि वो जैसा आप चाहें वैसा बन जाए, दूसरा ऑप्शन ये आप वैसा बन जाओ जैसा वो चाहे. Is that a better one? तो वैसे बन जाओ आप. टाइम नहीं, क्यों? टाइम Are we ready to change to be the way the other person wants us to be? Are we ready to change the way the other person wants us to be? Nahin, why? 30% is not possible. Why 30% is not possible? Because 70% आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, बट 30% कहीं ना कहीं आप भी सही होते हो. चेंज कर सकते हो, बट पूरा तो चेंज नहीं कर सकते ना अपने आप को. आप भी तो सही हो सकते हो, आप भी सही हो आप सकते तो हो. हमेशा ही सही हो. No, really. हर एक सही होता है. सिर्फ फर्क क्या है? उनका सही और हमारा सही डिफरेंट होता है. हमें बचपन से ये सिखाया ही नहीं गया कि दो लोग अलग होते होते सही हो सकते हैं. We said one is right, the other one is wrong. But the truth is actually that both are right, but both are different. अब both different भी क्यों हैं? And this is the right time to understand that. We are a soul on a journey. आज हम इस शरीर में हैं. ये सीडी है. इस पे क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पर. ठीक है. अब जब हम इस कॉस्ट्यूम में, मोस्ट ऑफ यू वुड बी बिटवीन 25-30. ठीक है. तो इस 25-30 साल की रिकॉर्डिंग, जब आप 9 months अपनी मम्मी के अंदर थे, उन्होंने जो सोचा उसकी रिकॉर्डिंग, राइट. उससे पहले आप किसी और शरीर में थे, 100-80 साल उसकी रिकॉर्डिंग. उससे पहले आप अलग शरीर में थे, उससे पहले आप अलग शरीर में थे, उससे पहले आप अलग शरीर में थे. अब अपनी सीडी को देखें, कितनी सारी रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे. एक सीडी यहाँ, एक सीडी आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठी है. इज इट पॉसिबल ये 2 सीडीज पर एक जैसी रिकॉर्डिंग हुई हो इतनी लंबी जर्नी में? नॉट पॉसिबल. अब होता क्या है, एक दिन ये 2 सीडीज की शादी हो जाती है. And they wake up next morning listening to the song playing on the other CD and saying, what kind of a song is this? You should have the same song that my CD plays because I am only used to that music. And अभी कुछ महीने के बाद इन दोनों के पास एक तीसरी सीडी आने वाली है. और ये दोनों ये सोच रहे हैं कि वो जो तीसरी सीडी आएगी वो तो ब्लैंक आएगी, हम उस पर जो चाहेंगे वो लिख देंगे. प्लीज रिमेम्बर, वो सीडी फुल भरी हुई आने वाली है. क्योंकि जब वो अपने गाने प्ले करेगी तो उसको सुनकर ये नहीं कहना ये ऐसा क्यों है, ना मैं ऐसा हूं ना ये ऐसी है, तो ये ऐसा क्यों है. That is why spirituality gives all answers. We think ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा इज अ रोल. ये एक आत्मा है जो अपनी जर्नी पर है और अब ये हमारे घर आई है. ये एक ब्लैंक स्लेट नहीं है जिसके ऊपर हमने जो चाहा वो लिख दिया. वो स्लेट भरी हुई आई है. The other day I met somebody, उसका 5 साल का बेटा है. कहती मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, जो कागज पढ़े उसको तो रट जाता है. सर अच्छा. कहती भाषाएं भी उसको इतनी सारी आती हैं. ऐसे अच्छा है, पास्ट का कुछ कैरी करके आया है, यंग एज में ही वो संस्कार है. एक प्रॉब्लम है लेकिन उसके अंदर, उसको पानी से बहुत डर लगता है. तो ऐसे कोई बात नहीं ना, क्या फर्क, ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में. नहीं मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड तो लाइक सम लेवल के स्विमर हैं वो, तो वी थॉट दैट आवर सन विल ऑब्वियसली बी अ स्विमर. ऑब्वियस भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना हमारे लिए. तो शी सेड हाउ कैन माई सन नॉट लाइक स्विमिंग.
तो कहती है लास्ट संडे मैंने क्या किया, सुबह से उसको तैयार किया, आज स्विमिंग जाना है, आज स्विमिंग जाना है, आज स्विमिंग जाना है। वो भी कहता रहा हाँ मम्मी जाना है जाना है जाना है। जब वो पूल पे गया, वो देखकर डर के भाग गया। कहती मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने एक इधर मारा और पूल में डाल दिया उसको। आई जस्ट सेड टू हर, ऐसे आपको याद है 6 साल पहले उस शहर में फ्लड आया था? हाँ। ऐसे इसने उसमें शरीर छोड़ा था। She just looked at me like that. आपको दिखता है? मतलब हाँ। She said फिर तो obviously उसको पानी से डर लगेगा। I said obviously. 1 मिनट पहले जो चीज अजीब लग रही थी, एक क्लैरिटी से लगता है कि हाँ ऑब्वियसली उसको पानी से डर लगेगा। सो वी नीड टू रिमेंबर कि वो आत्मा अपने साथ संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आई है, और हम उसको सीडी को देखना होगा एंड उसके प्रति कंपैशन। ये नहीं कि ये ऐसा क्यों, बिकॉज इट्स वेरी डीप। जब एक बच्चे को ऐसी थॉट मिलती है पेरेंट्स से, ये ऐसा क्यों, this is a thought of rejection. It's like if I create a thought for you, why you like this? ये rejection है ना, rejection from the most important people. आप में से किसी के अंदर गलती से भी, बाई चांस भी ये थॉट तो नहीं कभी आया कि बेटा होगा या बेटी होगी? ध्यान सोच लो, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। कई बार तो नाम भी सोच लेते हैं अंदर, कई बार तो वो कलर के कपड़े भी ले लेते हैं जो उनसे चाहिए ऐसा। नाउ इफ वी आर नॉट अवेयर देन इट्स ऑल स्वीट कि ठीक है ना, आपस में बैठे, घर में सारे बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बेटा होगा बेटी होगी, पहला बेटा है दूसरी बेटी चाहिए। वी थिंक इट्स कैजुअल कॉन्वर्सेशन। समवन इज लिसनिंग। अंदर एक बेटा है और आप अगर कह रहे हैं मुझे बेटी चाहिए, या आप ये भी नहीं कह रहे मुझे चाहिए, आप कहते हैं बेटर वुड बी कि बेटी हो, बट दोनों चलो कोई बात नहीं, ठीक है यू नो, बिकॉज वी ऑल्सो नो हाउ टू डू इट। देन वी से वैसे मुझे बेटी चाहिए बट कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी हो, हेल्दी होना चाहिए। समवन इज लिसनिंग इनसाइड। क्या मैसेज मिलेगा? क्या मैसेज मिलेगा? कि ये तो किसी और का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तो मैं आने वाला हूँ। We meet people who are now 45, 50 and they say, छोटी छोटी बात होती है ना, छोटी भी बात होती है उनके जीवन में, he rejected me, she rejected me, and it always goes down to they had faced rejection from their parents, and rejection in that period, उस टाइम पे। अब पेरेंट अपनी पूरी जीवन बिताएगा उस बच्चे को ये कहने में कि नहीं आई लव यू, आई लव यू। आप किसी और का इंतजार कर रहे थे, आ गया मैं। तो गलती से भी ये थॉट नहीं क्रिएट हो सकती, गलती से भी नहीं। कैसा वाला पर्सन चाहिए? बेबी कैसा वाला चाहिए? सिर्फ हेल्दी नहीं, अब हैप्पी और हेल्दी दोनों चाहिए। कभी कभी हमारे अंदर ये थॉट्स क्रिएट होते हैं कि पता नहीं डू वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, हमारे घर का साइज ठीक है क्या, वो आएगा तो उसको कमरा कौन सा देंगे, उसका सामान कहाँ रखेंगे, हमारी सैलरी में हो जाएगा क्या? व्हाट आर ऑल दीज थॉट्स? व्हाट आर ऑल दीज थॉट्स? इट्स लाइक आपने किसी को डिनर पे आज बुलाया और सुबह से आप ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, पनीर खरीदने के पैसे हैं क्या, रोटी है क्या, कोक पिलानी पड़ेगी क्या? करेंगे भी, लेकिन एंजाइटी के साथ क्रिएट करेंगे। तो जब वो व्यक्ति शाम को आपके घर खाने पे पहुंचेगा, एनर्जी वेलकमिंग नहीं होगी। मैं भारी पड़ा इनके घर के लिए, ऐसा। एक चीज याद रखना है, वो बच्चा अपना भाग्य लेकर आ रहा है, आप उसका भाग्य नहीं लिखने वाले।
ऐसे होता है, बच्चा आता है और पेरेंट्स का भाग्य बदल जाता है, और बदलना ही पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे के भाग्य में वो चीजें लिखी हैं जो आनी है, तो वो आनी ही है, आपको भी नहीं पता चलेगा कहाँ से आ जाएंगे। तो हर थॉट वेलकमिंग होनी चाहिए, हर थॉट वेलकमिंग होनी चाहिए। एक कमरा भी होगा इज फाइन, यहाँ स्थिति ऐसी होनी चाहिए। कम या ज़्यादा इज एक्चुअली नेवर अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट एटीट्यूड, इट्स अबाउट एटीट्यूड। कुछ लोगों के पास बड़ा बंगला होता है तो भी कहते हैं कमरे कम है, और कुछ के पास एक कमरा है, क्योंकि इसमें भी तो हम बहुत सारे सब पूरे आ जाते हैं। इट्स ओनली अबाउट एटीट्यूड। सो माई एवरी थॉट टू द सोल हैज़ टू बी अ वेलकमिंग एनर्जी, नो कि आप आ रहे हो तो मेरी जीवन डिफिकल्ट होने वाली है। अगर हम वर्किंग मदर हैं तो हम थॉट क्रिएट करना करते, अब क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मतलब क्या मैसेज भेजा, मतलब क्या मैसेज भेजा, तुम्हारी वजह से मेरा करियर अफेक्ट हो रहा है। और कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हम इस टाइम पे अगर चेंज करते भी हैं अपनी लाइफस्टाइल में, नेवर एवर क्रिएट इवन अ सटल थॉट, because of my child I'm having to give up this, because of my child I cannot drink coffee, because of my child I can, भारी है, त्याग नहीं कर रहे, इसको त्याग नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है जो हम उसको दे रहे हैं, उसके लिए त्याग नहीं कर रहे, नहीं तो भारी मैसेज पहुंचेगा वहां पे, तुम्हारी वजह से मैं ये भी नहीं खा सकती, तुम्हारी वजह से मैं ये भी नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से मैं ये भी नहीं। Every thought welcoming energy, I'm loving what I'm doing for you, not I'm having to do this for you. कुछ भी अंदर ऐसा नहीं डालना है। आजकल हम बहुत खेल खेलते हैं, एक कप कॉफी तो पी सकते हैं, एक न्यू ईयर भी आ रहा है अभी। उस दिन नितिका ने कहा, एक पेशेंट आती है, कहती है मैम न्यू ईयर एंड विदाउट वाइन कैसे हो सकता है, ओनली 1 ग्लास। डॉक्टर से क्या पूछने की बात है इसमें, ये तो थॉट ही नहीं अंदर आनी चाहिए ना, डॉक्टर से कौन जाके पूछेगा, डॉक्टर का बेबी नहीं हो रहा, डॉक्टर के हाँ ना बोलने से नॉट डूइंग अ फेवर टू अस। बाय इफ सम डॉक्टर सेज टू यू ओके ठीक है भाई, अब आपको इतना मन है तो आप आधा ले लो, तो उससे नुकसान किसका होने वाला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे संस्कार कौन सा बन रहा है बच्चे का, लैक ऑफ विल पावर। इतनी विल पावर भी नहीं है, इतनी भी विल पावर नहीं है, उस बच्चे के अंदर विल पावर कहाँ से आएगी। हमारे अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि हमें जो बोला जाए ये छोड़ो, छोड़ दिया, ये करना ये करो, जो बोलो अभी हम कर देंगे, विल पावर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये विल पावर नहीं होगी तो उसके अंदर वो विल पावर कहाँ से आएगी। जाओ ही नहीं ऐसी पार्टीज में, उस बच्चे को ऐसी वाइब्रेशन से भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम, उसको पता भी नहीं चले कि ऐसी चीजें क्या होती हैं। लोगों के मन की स्थिति, एक न्यू ईयर ही तो है सिर्फ, नेक्स्ट न्यू ईयर जाएंगे। वी आर क्रिएटिंग अ पर्सनैलिटी। सुबह से आप सुन रहे हैं, इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज अगर आपकी न्यू ईयर पार्टी पे जाना भी है लेकिन आपके ऑफिस की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो आप पार्टी कैंसिल करते हैं। तो ऑफिस का प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट, इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई ऐसी चीज अंदर ना जाए। और इसके लिए डॉक्टर से पूछने की, हमें सब पता है अंदर क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के ना कुछ कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। सो वी आर टेकिंग इट अप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ वेरी लविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर प्रमिला ने बहुत प्यारी बात कही, साइंटिफिक प्रूफ क्या है हमारे पास, क्या प्रूफ देंगे हम, क्या प्रूफ देंगे, कैसे देंगे प्रूफ। डॉक्टर्स को प्रूफ चाहिए होता है हर चीज का, कैसे देंगे प्रूफ,
कैसे देंगे? प्रूफ कैसे देंगे कि ये सब वर्क करता या नहीं करता? कैसे प्रूफ देंगे? कैसे देंगे प्रूफ? कैसे देंगे प्रूफ? करके दिखाएंगे, करके उनको दिखाएंगे कि ये हमने किया, ये उसका रिजल्ट है. We are heading towards a shift in society. बाहर का जो वातावरण है, आजकल दिल्ली में रोज पेपर में आता है ना, पोल्यूशन कितनी है. उसी तरह दिल्ली की मेंटल पोल्यूशन भी डे बाय डे बढ़ रही है. You cannot stop yourself from consuming the vibrations of people around you. But then we have to do something so that we take care of our vibrations, no? Negativity चारों तरफ बहुत है, तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रोज कुछ ऐसा करें जिससे हमारी मन की स्थिति. सुबह का समय एटलीस्ट आधा घंटा हमें कुछ बहुत प्योर और एलिवेटेड अपने अंदर भरना है. कुछ पढ़ना है, कुछ सुनना है, कुछ भी करना है. We will not start our day without that. ब्लॉटिंग पेपर सुबह का एकदम क्लीन होता है, उसमें जो डालेंगे वो ऐसे उसको चूस लेता है. आज मेजॉरिटी घरों में अखबार सबसे पहले आ जाता है और फिर न्यूज़ चैनल ऑन हो जाते हैं. सुबह सुबह फाउंडेशन में क्या भर दिया? फिर सिर्फ हम बोलते रहें कि पॉजिटिव थिंकिंग, वो होगा नहीं. अगर हम सुबह का आधा घंटा कुछ बहुत प्योर डिवाइन अंदर भरते हैं, फिर पॉजिटिव सोचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप होता ही जाएगा. तो इसको एक रिचुअल की तरह बनाते हैं कि आधा घंटा मुझे अपने अंदर कुछ प्योर और पॉजिटिव भरना ही भरना है फॉर द माइंड. फिर 15 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे. आज देखा मेडिटेशन सुबह, परमात्मा से वो वैल्यू, वो क्वालिटी, वो वर्च्यू ली, अपने अंदर भरी और फिर अपने यहाँ से उस आत्मा को भी दी, उसके अंदर भी भरी. 2 CDs में रिकॉर्डिंग हो रही है. अपनी सीडी में भी रिकॉर्डिंग की, नई वाली सीडी में भी रिकॉर्डिंग की. तो माइंड एंड बॉडी दोनों हेल्दी होता जाएगा. इतना हमें समय अपने लिए सुबह रोज निकालना है. और फिर रात को सोने से पहले नेवर गो टू स्लीप विद कॉन्फ्लिक्ट ऑन माइंड. नेवर गो टू स्लीप विद अनरिजॉल्व्ड इश्यूज. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई बार जब होता है और कई बार आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, तो उसके बाद कई घरों में साइलेंस हो जाता है. आप में से किसी के घर में साइलेंस होता है झगड़े के बाद? कितनी देर चलता है वो साइलेंस? 5 मिनट्स. और एनीबडी एल्स, कितनी देर चलता है साइलेंस? हाँ जी, couple of days. आज एक चीज करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा. वैसे अब तो हमें गुस्सा अलाउड ही नहीं है कुछ महीने, तो वो तो होगा ही नहीं, झगड़ा भी नहीं होगा. पर दिस इज फॉर अ लाइफ टाइम कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. कभी कभी छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है. वो उस व्यक्ति के साथ हुई है जिसके साथ हमने नॉर्मल होना ही है. जो चीज़ 5 मिनट बाद करनी है या 5 घंटे बाद करनी है या 2 दिन बाद करनी है, वो 2 सेकंड बाद क्यों नहीं? क्यों? जो गुस्सा किया, आर्ग्यूमेंट हुई, उसमें बैटरी डिप्लीट होती है, थोड़ी सी डिप्लीट होती है. लेकिन जो साइलेंस पीरियड होता है उसमें बैटरी टप 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 डिप्लीट हो जाती है. और दोनों जने अंदर से जो तीर एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, एंड फिर हम अपने घर के बच्चों का भी उस ड्रामे का हिस्सा बनाते हैं. फिर उसको कहेंगे जाओ पापा को बोलो खाना बन गया. फिर पापा बोलेंगे वहां बोल दो मुझे नहीं खाना. चाइल्ड इज लर्निंग कि जब मेरी क्या हुआ पीछे, oh that child has been used to that drama, see he recognized it,
वी आर टीचिंग देम दिस इज द वे टू लिव. कल क्या होगा जब उनका कोई कहना नहीं मानेंगे, वो भी बात करना बंद कर देंगे, बिकॉज उन्होंने वही सीखा है. बात हुई, आर्ग्यूमेंट भी हो गया. कितनी देर में नॉर्मल? कितनी देर में नॉर्मल? Why? We are doing it for the health and happiness of my family. अहंकार हमारे अंदर है, लेकिन अपने रिश्तों को अपने अहंकार से ऊपर, अपने अहंकार को अगर अपने रिश्तों से ऊपर करना शुरू कर दिया तो रिश्तों की फाउंडेशन क्या होती जाएगी? दोनों में से कौन जिम्मेवारी उठा रहा है फर्स्ट नॉर्मल आने की? It's very easy. It's only a habit. It's only a habit. जिन्होंने कहा 5 मिनट वो हमेशा 5 मिनट लगाएंगे. जिन्होंने कहा 2 घंटे वो हमेशा 2 घंटे के बाद बात करेंगे. जिन्होंने कहा 2 दिन वो हमेशा 2 दिन के बाद करेंगे. It becomes a habit. और जिन्होंने कहा immediately वो हमेशा immediately करेंगे. वो पीरियड ऑफ साइलेंस हमारी भी सेहत पर असर कर रहा है, उनकी भी सेहत पर असर कर रहा है. ये वो हैं जिनको अगर कल कोई बीमारी हो गई, हमारी पूरी जीवन उनके अराउंड रोटेट करेगी. बीमार होने के बाद क्यों इलाज किया जाए? इलाज तब कर लें ताकि दोनों को कोई बीमारी हो ही नहीं. और पूरे घर में वाइब्रेशन कैसा हो जाता है? इतना हैवी. इमीडिएटली नॉर्मल, इमीडिएटली नॉर्मल. हर टाइम मैं, ये नहीं पिछली बार भी मैं ही नॉर्मल हुई थी, पहले इस बार भी मैं ही नॉर्मल, हर बार मैं, क्योंकि वो मेरा नॉर्मल होने का संस्कार है. इंस्टेड ऑफ सेइंग मैंने नहीं खाना खाना, वी शुड से चलो इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं. इट्स ओनली एन एटीट्यूड. प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए, क्या हम ऐसा करें जिससे हम सबकी एनर्जी लेवल बढ़ता जाए. नहीं तो चक्रा ब्लॉक्ड हो जाते हैं. पिछली बार जब डॉक्टर नितिका के घर डॉक्टर चंद्रशेखर आए थे, उन्होंने एक पार्टिसिपेंट को आगे बुलाया स्टेज पे, डॉक्टर अर्चित. उनका पूरा चक्रा देखा, उनके सारे परफेक्ट थे और उनका ऑरा 10 फीट था. एवरीथिंग वाज परफेक्ट. फिर उनको कहा 2 मिनट आंखें बंद करो और लास्ट सीन वो याद करो जब आपको गुस्सा आया था. गुस्सा नहीं करना अभी, सिर्फ सीन याद रखनी है जब आपको गुस्सा आया था. बहुत पुरानी बात उन्होंने याद की 2 मिनट के लिए. 2 मिनट के बाद चक्रा ब्लॉक्ड, ऑरा छोटा. फिर 2 मिनट के बाद पानी पिलाया, चक्रा ओपन्ड, ऑरा लंबा. इट इन्फ्लुएंस इज वेरी फास्ट. नेगेटिव भी वेरी फास्ट, पॉजिटिव भी वेरी फास्ट. दोनों चीजें, ऐसे नहीं कि नेगेटिव ही हो रहा है सारा दिन. इसलिए कोई ऐसा साइलेंस पीरियड नहीं जिसमें हमारी बैटरी क्या होती जाए, डिप्लीट होती जाए. चलो क्विकली होमवर्क रिवाइज करो, क्या क्या करना है. हाँ, गुस्सा तो फॉरगॉटन, अभी तो इट्स डिलीटेड फ्रॉम योर सीडी ओनली नाउ, है ना. और बताओ, आपस में जब भी आपकी वाइफ की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होती है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड, आप अपना सब कुछ छोड़ के उनका ध्यान रखते हैं ना. फिजिकल बीमारी हमें एक दूसरे की दिखती है, इमोशनल बीमारी हमें नहीं दिखती एक दूसरे की. जब कोई उदास हो, इरिटेटेड हो, गुस्सा हो, वो भी तो इमोशनल बीमारी है. अपना ईगो छोड़ के जल्दी से उनका ध्यान रखना चाहिए. तो आपस का कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज द टाइम टू लेट गो ऑफ योर ईगो. आपका बेबी भी सीख जाएगा ईगो को छोड़ना है. एवरीथिंग इज लर्निंग. कॉन्फ्लिक्ट उसके जीवन में भी, अपने रिश्तों में कभी नहीं आएगा, किसी और के साथ भी. हम क्या कहते हैं सारा दिन, आई एम थिंकिंग एवरीथिंग पॉजिटिव फॉर माई बेबी. इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव ओनली फॉर योर बेबी, इट्स अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव द होल डे, अबाउट एवरीथिंग. तो ऑफिस में से भी किसी से उलझना नहीं, रिश्तेदारों में किसी से उलझना नहीं. ये टाइम हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किसी की एनर्जी नहीं. देखना क्या है, पढ़ना क्या, सुनना क्या,
आज डॉक्टर नितिका ने कहा ना, आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है, तो आपस में भी जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है। हर चीज़ ध्यान से, अटेंशन। पानी पीना है चार्ज करके, खाना खाना है चार्ज करके, सुबह थोड़ी देर समय निकालना है अपने अंदर कुछ करने का। आज आपको एक सीडी मिलेगी। हमने इस वर्च्यू बेबी के ऊपर 30 मिनट्स के टॉक शो बनाए हैं, जो आज लिया डिटेल। To begin with, for the next 28 days, हम हर रोज आधे घंटे का एक वो एपिसोड सुनेंगे, इकट्ठे बैठ के, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हुई थी 1.5 साल पहले। For some reason or the other it kept getting stuck कि ये टीवी पे चलनी है, ये यहाँ जानी है, यहाँ जानी है। You all are the first people who are going to get a chance to listen to this. No one else has heard them. So your baby is somebody very special. Wow. Very, very special. कि 28 एपिसोड सिर्फ और सिर्फ वर्च्यू बेबी कैसे होना चाहिए उसका, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल दोनों। तो वो सीडी आपको इसलिए मिल रही है ताकि अगले 28 दिन का आपका पॉजिटिव फिक्स्ड है कि क्या अंदर लेकर जाना है। फिर उसके बाद आप आगे चूज करना, बट तब तक वो आपका संस्कार बन जाएगा कि हमने इकट्ठे मिलकर अपने अंदर कुछ भरना है। तो वो सीडी आप सुनेंगे, ज्ञान रोज अंदर भरेंगे और मेडिटेशन हम रोज करेंगे। अगर आप मेडिटेशन और गहराई से सीखना चाहें तो आप जहाँ भी रहते हैं, आपके नज़दीक ब्रह्मा कुमारी का राजयोगा मेडिटेशन सेंटर होगा, वहाँ जाकर भी मेडिटेशन सीख सकते हैं। वो मेडिटेशन 1-on-1 सिखाया जाता है। तो जो दिन जो टाइम आप चूज़ करें, 5-6 दिन के लिए आधा पौना घंटा, तो वहाँ बहनें हैं सिखाने के लिए। सो यू कैन ऑलवेज टेक दिस अपॉर्चुनिटी to go there and learn that meditation and start doing it daily 10 minutes. तो वर्च्यू बेबी होना ही होना है। और आज से अपनी लिस्ट में आई वॉन्ट हेल्दी बेबी नहीं सिर्फ करना है, आई वॉन्ट अ हैप्पी एंड हेल्दी बेबी। हमेशा याद रखें, जो हेल्दी है वो ज़रूरी नहीं हैप्पी होगा, लेकिन जो हैप्पी है वो ज़रूरी है कि वो हेल्दी होगा ही होगा। आओ नितिका बहन, किट के बारे में बताओ। डॉक्टर नितिका, किट के बारे में बताओ। इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स के साथ जब सुना तो लगा वी हैव टू अप्लाई देम। सो जब व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे लगा कि वी आर गोइंग टू टेक वर्कशॉप्स, बट मुझे ऐसा लगा कि इस माइंड को बहुत वेरिएशन चाहिए होती है। एक ही चीज़ हम करते हैं, हम थोड़े से बोर हो जाते हैं। मतलब हाउ डू वी डू इट इन दैट मैनर जो हम रोज़ अपने साथ कैरी कर सके। हमारे पास रोज़ एक वर्च्यू टाइम डिमार्केटेड होना चाहिए, यू नो, जहाँ हम ये संस्कार को भरे हम अपने अंदर। सो मैंने अपनी तरफ से यू नो थोड़ा सा एक छोटा सा पैक बनाया उन चीज़ों का। आई मेड अ लिटिल स्टोरी बुक विच आई थिंक कि आप यूज़ करते रहे बाद में रोज़। दे आर वो उसमें 36 स्टोरीज हैं एंड ईच जिसको मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा वो 36 गुण ज़रूर मिलाते हैं। हाँ, हमारे उसमें तो हम लोग ज़रूर कहते थे, पर मुझे नहीं पता था ये गुण क्या है। अभी तक तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने निकाले, आई टुक आउट ऑल दोज वर्च्यूज़, देन आई लुक्ड फॉर दोज स्टोरीज एंड देन मैंने उनको कहा इस तरह से कि हम एक मेडिटेशन भी उस वर्च्यू की बनाएं। कितना टाइम लगता है हमें एक छोटा सा पैराग्राफ मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम एज पेरेंट्स बैठें और अपने बच्चे को प्यार से याद करें उस पैराग्राफ को पढ़ के। जब बिकॉज वी नो एविडेंस से कि बच्चा सुन रहा है, ये हमें पक्का समझ में आ गया, तो फिर सुनाते हैं ना उसको। कुछ कई बार क्रिएट करना मुझे लगा मुश्किल हो जाता है। यू नो, हमारे पास आते हैं कपल्स, वो कहते हैं, हम उनको कहते हैं आप खुश रहो, वो कैसे रहे, वो रोज़ करे कैसे। तो वो ये टूल्स बनाए, एक बुक, एक स्क्रैप बुक बनाई। मेरी ऐसी फीलिंग थी कि जब बच्चा बड़ा हो जाए ना, उसको पकड़ाए उसको, हाँ, जब वो पढ़ने लग जाए कि ये मैंने 9 मंथ्स आपके साथ बिताए जब मैं देख नहीं पा रही थी। तो उसके लिए एवरी संडे बैठ के लिखें उसमें कि ये है, क्या किया हमने, अब क्या किया, खाना कौन सा खाया, ये अच्छा लगा, तुम ऐसे करते थे। सो वो अपनी तरफ से जो जो मेरे माइंड ने क्रिएट किया, मैंने उसको पेन डाउन किया।
एक छोटा सा कैलेंडर बनाया, एवरी वीक क्या क्या हो रहा है। आजकल गूगल पे जाएं हम तो सब कुछ पता लगता है, इस वीक क्या हो रहा है, आजकल तो नेट पे भी आ जाता है इस वीक क्या हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को से बॉन्डिंग होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, बट जब हम उस इन्फॉर्मेशन को देखकर सुनकर अपने सिस्टम में डालते हैं, हम उससे बच्चे से बॉन्ड कर सके उससे, वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो वो पूरे 40 वीक्स का एक कैलेंडर बनाया छोटा सा। एंड देन एवरी कलर, जैसे हमारे हर कलर की एक वाइब्रेशन है, हम जानते भी हैं, हम हमेशा देखते हैं कोई कलर जैसे पहनते हैं तो उसके लिए क्रोमोथेरेपी के हिसाब से एक वैल्यू अटैच्ड है। सो मुझे लगा वेरिएशन ज़रूरी है माइंड को, तो देन आई मेड रिलैक्सेशन वीडियोस अबाउट 3-4 मिनट्स ईच, कोई लंबे नहीं है। आज अपना डे चूज़ कर लो, मंडे मेरा लव डे है, तो हमने उस कलर की और उस छोटी सी मेडिटेशन करनी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज लव ही देना है सबको, चाहे कहीं भी हम जाएं हमारे हिसाब से कुछ ना हो। सो यू चूज़, यू नो, योर माइंड विल क्रिएट कि किस तरह आप इनोवेटिवली वो मेडिटेशन कमेंट्री, सुबह उठ के क्या करना है, रात को सोने से पहले 3 मिनट सुने, खाने से पहले सुने, कभी डिस्कम्फर्ट हो रहा है प्रेगनेंसी में तो क्या सुने, बिकॉज खुद नहीं क्रिएट कर सकता माइंड। मुझे ऐसा लगा अगर हो हमारे पास टूल तो हम जल्दी कर पाएंगे। एक मूवी कुछ लोग तब नहीं आए थे, हमने 8:45 to 9 चला दी थी, एक छोटी सी मूवी शूट करी। आई थॉट इट विल बी enjoyable, मतलब दिस वॉज द वे दैट आई वॉन्टेड दैट एवरीबडी शुड टेक दिस कि इट इज़ इम्पोर्टेंट और ये कर सकते हैं हम। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ डिफरेंट, बस हमारे पास हमें करना आना चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। सो ये 4 CDs और ये एक स्क्रैप बुक और एक स्टोरी बुक और एक कैलेंडर, जस्ट टू मेक कि आप लोग कुछ वर्च्यूज़ को बस हर तरीके से भरते जाए। दैट वाज द ओनली एम ऑफ मेकिंग दिस लिटिल किट। क्योंकि जो एपिजेनेटिक मार्क्स की हम बात कर रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें ये है कि जो डल जाते हैं वो रिवर्स भी हो जाते हैं। इट इज़ नॉट कि हमने अगर डाल दिए हैं, हमारी जीन्स जो स्विच ऑन और ऑफ होती है एपिजेनेटिक से, बस वो हो गई तो हो गई। कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड टू इट, कीप चेंजिंग, इवॉल्विंग, इवन आगे तक के लिए हम उसके लिए कर सकते हैं ये वर्च्यू टाइम निकाल के। थैंक यू। अब हम 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे। उसके बाद आप एक एक कपल आगे आएंगे, 4 बहनें बैठी होंगी यहाँ पे, आप इस तरफ से आएंगे। पहले से आपको एक ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा, हर एक का ब्लेसिंग कार्ड डिफरेंट है, एंड वो ब्लेसिंग आपका ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग कार्ड और प्रसाद हर एक को वहाँ मिलेगा। उसके बाद आई विल बी सिटिंग हियर, CD मेरे पास होगी, सो एवरी मदर विल टेक दैट CD फ्रॉम मी। फिर यहाँ पे डॉक्टर मनीषा होंगी, आपके लिए आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे। यू वांट टू टेल व्हाट दैट गिफ्ट्स आर? मदर्स के लिए, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के लिए उन्होंने छोटा सा एक बैग बनाया है। सो वी पुट इन ऑल जो मदर के, मॉम एंड मी एंड पिजन एंड सिम मॉम पाउडर, एबट वाले दोनों ने छोटा छोटा अपना कुछ कुछ दिया, तो वो आप कलेक्ट करेंगे हमसे। तो सबसे पहले ब्लेसिंग लेंगे, वो दोनों जने लेंगे आप, फिर CD फॉर द मदर, गिफ्ट बैग फॉर द मदर, एंड जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए डॉक्टर नितिका बैग देगी, दैट विल बी अ डिफरेंट बैग। फॉर उस 2 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे। उसके बाद ये सारा कुछ हम साइलेंस में करेंगे, बिल्कुल एकदम जैसे कि हॉल में कोई है ही नहीं। यहाँ से आते जाएंगे ताकि वहाँ से फिर हम बाहर चलते जाएंगे। सिट बैक कंफर्टेबल। I, the being, creator of every thought and feeling, मेरी हर सोच वो आत्मा अंदर सुन रही है, कैच कर रही है और वैसा बनती जा रही है। I am a pure divine being,
विजुअलाइज करें परमात्मा से प्योरिटी की किरणें हमारे पे पड़ रही है और हमारे से उस आत्मा को जा रही है. It's like a laser beam from God to me, from me to the soul inside me. उस आत्मा को मुझे परमात्मा की प्यार और शक्ति देनी है. I am a peaceful, loveful being. My every thought is radiating peace and love to that being within me. वो आत्मा जो कुछ पीछे छोड़ कर आई है, जो कुछ पीछे देख कर आई है, इट्स अ पास्ट. बताएं उसको इट्स अ पास्ट. अब एक नई शुरुआत, एक नया परिवार बहुत प्यार से आपका इंतजार कर रहा है. वो आत्मा इस दुनिया में खुशी, प्यार और शांति फैलाने के लिए आ रही है. वो आत्मा इस दुनिया को बदलने आ रही है. वो आत्मा इस सृष्टि पर नया युग, सतयुग लाने के लिए आ रही है. Look at that soul, divine, always smiling, always happy, cooperating, caring and giving. सबको देने वाली आत्मा है वो, दिव्य आत्मा है वो, सबको सुख देने आ रही है वो. हम इसी साइलेंस में बैठे रहेंगे और जो हम परमात्मा से लेकर उस आत्मा को देना चाहते हैं वो हम देते रहेंगे और धीरे धीरे एक एक करके आगे आएंगे. और परमात्मा से हमें आज क्या ब्लेसिंग मिलता है वो हम लेते जाएंगे. रोज सुबह हम इसी तरह 5 मिनट बैठेंगे. 5 मिनट to channelize God's energy to my child. सब कुछ उसको वो देना है जो उसको बहुत पावरफुल, प्योर और डिवाइन पर्सनालिटी बनाएगा. I have the power to influence the destiny.